ये इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब बोझों का मारा ही नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि कहीं जेन्युइनली यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। उन बच्चों की मैंने कभी प्रॉब्लम भी नहीं देखी। प्रॉब्लम भी उनके साथ ही है जो ये ऐसे से हम्बल बैकग्राउंड से अपने आप को you're not putting yourself out there, you're not putting yourself in front of and in between people. They won't know you first of all, and then you'll be struggling alone. और कनाडा जैसी कंट्री में we don't have friends. I think you're already losing. यहाँ ये हर एक ऐसी भी मिस इंटरप्रिटेशन है स्टूडेंट्स को लेके कि शायद हर कोई बच्चा तंग आता है। जो लोग यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी वेल्थ बना ली है, वही लोग आज जो मेरे जैसे या आप लोगों जैसे जो लोग हैं यंग एंटरप्रेन्योर जो आके यहाँ कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, अपनी कम्युनिटी वाला ही अपनी कम्युनिटी वाले को मारता है। जितना AI का यूज़ दुबई में है फॉर इन द बिजनेस वर्ल्ड, मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कि अब तुरंत आपकी शॉप पे लोग आके आपको कह रहे हैं कि कनाडा में कुछ नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेज़ी भी हैं जिन्होंने जेन्युइनली ट्राई किया ही, जिनके एम्बिशन बहुत बड़े बट वो ट्राई नहीं करते। हालांकि मैं मानता हूँ कि यहाँ की रियल एस्टेट में जो अपॉर्चुनिटी अभी इस टाइम पे है, वो आने वाले 3 साल बाद ऐसे लगेगा कि यार भाई ये हमने क्यों छोड़ दी। द लॉन्गर यू होल्ड ऑन टू रियल एस्टेट द मोर फॉरगिविंग इट गेट्स। कोई आपको कुछ चीज़ बोल रहा है, नेवर टेक इट फेस वैल्यू। हमेशा आप अपने फेवर में नेगोशिएट करो। बट जो रियल एस्टेट की मार्केट को ख़राब करने वाले लोग हैं ना, दोज आर ऑल्सो इंडियंस। Hello everyone, thank you for coming back to my show. It's True Talks with Prajwal Shah, and it's our one of our 4th episode, and today we have Lakshay Mehta. He is one of the mortgage agent in the Ontario and Canada region, and like he will be sharing the insights from his journey. He started from India to Canada, Canada to Dubai, and now like he will be sharing his all the journey. Stay tuned. लक्ष्य जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ट्रू टॉक्स विद शाह। आपका थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। पहले कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच ब्रो फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਗॉट ਯੂ ਦੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ you are a true leader, you are a true share in your market, and people I just want to show that one too. Done. Yeah. People are watching you, bro. Yeah. Whether you know it or not, Yeah. people are watching you. People are getting inspired. So keep doing what you're doing, and thanks for having me. Sure. Sorry. So this is the gift we got from Lakshay bhai. Here you go. हाँ जी bhai. Thanks for having us here, giving me the time. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਲਕਸ਼ੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਰੂਟੀਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ब्रो फिटनेस से मैं आने की कोशिश कर रहे हैं वापस। ठीक है, सही है। वेट काफ़ी पुट ऑन कर लिया, बट ट्राइंग टू गेट बैक इनटू इट बिकॉज आई वाज सीइंग योर रील्स, you was little slim. I was videos. I was very athletic, bro. I had a 6-pack and everything. Nice. But got out of it. Things happened. Trying to get back into it, but right now, bro, my routine is all over the place, but it's very structured. Okay. It's not micromanaged, it's macro-managed, but I know a few segments ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, those are non-negotiables, but otherwise my schedule can fluctuate because I have a young family, ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, right? So that's why, you know, I don't want to have like one particular thing on one particular time. Nice. Because I know things can change and things can go anywhere. But what I do right now is I'm a real estate advisor for Dubai properties. Okay. For Canadians and Americans specifically. Okay. I've been a real estate investor for the last 11-12 years actually now. Okay. So I've kept buying rental properties, smaller multifamilies, not bigger multifamilies, but smaller duplex, triplex, that sort of thing, and pre-con properties. So my portfolio is a mix of rental and pre-con. Okay. Yeah, man. And what I'm doing right now is Canadians ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, particularly because of high interest debts, bad debts, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ Okay. ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਆਈ ਐਮ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਦੇਰ ਆਰ much better people in the market who do a better job than me but I would say I'm a small fish in a big market ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ $1000 ਜਾਂ $1500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ I'll do anything man because I've seen people cry in my office I've seen people like ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿਓ because of the spree in 2021 and 2022 ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ blindly properties ਚੱਕ ਲਿਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ now they are struggling they are in a fix ਕਿ ਭਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੋਰਡ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸੋ what do we do ਕਿਸੇ ਦਾ 12% ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ 10% ਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ 15% ਤੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ 18% ਤੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਐਮ ਸੀਇੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡੂ ਆਲ ਦੈਟ ਐਂਡ yeah man we're trying to help as much as we can so as a financial advisor you mean so like ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ you are doing it independently like how it works so I'm not a financial advisor first of all I am a mortgage agent ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣੇ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ I came back from India 2 months ago ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ I have been into the real estate game for so long I have been working with lenders private lenders A lenders B lenders all kinds of lenders for the last so many years and I understand their policy hai kede loopholes ne keda workaround keda right so I thought mortgages make the most sense plus jada mera background hai I graduated from University of Waterloo with a math and business degree computer science degree the numbers excite me and helping people also excites me so marrying those two together would be the mix of mortgage business so ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ bro so right now ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ right so it's an independent brokerage right so it's not an independent brokerage it's a brokerage as a whole it's the fastest growing brokerage in Canada and they have all virtual model you can work from anywhere so ਜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡੀਲਸ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ that brokerage allows me that flexibility so I'm with BRX brokerage they are headquartered in Vancouver but they have their remote offices like remote agents everywhere in Canada basically like the EXP model like they are the EXP of the mortgage world okay and so the head office is in Vancouver BC yes BC okay and like there will be a head office in GTA too because it's a very big market or no so they don't have any office it's a virtual office so मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ how does this work it's a very exciting thing very tech heavy front loaded on tech ਮਤਲਬ ਭਰਿਆ ਪਿਆ tech ਨਾਲ and let's say if I have a question ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ you open the door right you get into the office exactly like that I go on to my website the brokerage website and that opens up a Zoom room right Zoom room ਦੇ ਵਿੱਚ there's attendants all the time ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ in a Zoom meet ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ always ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਈਟ you tell them ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਸਪੋਰਟ ਔਨ ਵਨ ਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ there are 4 underwriters always present from 9 to 7 PM ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ these are underwriters who have 100 years of combined experience in mortgage world so I can go to anybody and tell them this is the file this is the client story and what can I do for this client what is the best way to structure this file what is the best way to package it and what is the best way or the best lender to submit it they will do all that for you and underwriters right senior underwriters they will do all that for you and they will submit the file for you ठीक है
So support wise, it's a great brokerage. Training is amazing. मतलब for new agents, I consider myself new in the industry, but मतलब मैं अपनी personal चीज़ां कर रहे हैं थोड़े time तो, so I have good idea of what goes on. Okay. So that's why I joined this brokerage, and it's like, I'm not promoting or anything, but it's a great brokerage for a newbie to join and get trained on. Another 100-day challenge. Every day you get an email with some tasks, and I still have to start that, honestly. Okay. But every day you get a task, and वो कोई training video होएगी आधे घंटे दी, 45 minutes, 1 hour, and then after that they outlay some tasks for you कि तुसी आज A करना है, ABC, Nice. A B C D. They list it all out for you, and then you have to do it for 100 days, and after 100 days you graduate that program. Nice. Yeah. Nice. That's why the reason I joined the brokerage. Nice. ਤੇ ਤੁਸੀਂ brokerage ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, schedules is always busy, right? Like you are getting late night calls, last minute calls. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? Like how like your brokerage help in this thing? So Because if you are new in the industry, right? So because like brokerage plays a very big role, right? yeah, Because ਇੱਕ back end support ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 100%. brokerage ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 100%. so ਉਹਦਾ like how it works in your industry or your life. In my experience so far, मैं कदे भी अपने mortgage broker ਨੂੰ I have never called them after 5, that period. And I want to work with these kind of people who understand time limits. If I'm not picking up your phone after 5, maybe I'm working on your file, I don't have time to talk to you. I'll give you an update, but I don't have time to talk to you right now because मेरे lenders मेरी file दी wait कर रहे हैं, right? So I'm going to be working on the file. One thing I would say is what this brokerage does really good, they have all the systems in place, tech systems in place, that allow the client to feel comfortable कि हाँ भाई मेरा काम चल रहा है, मेरी file ते काम चल रहा है, right? I'm not being overlooked. Somebody is looking after me, even if they're not replying to me personally. Somebody is looking after me, file te kaam chal raha hai. We have like live updates, tracker मिलता उन्हां नू कि ਤੁਹਾਡੀ file इस जगह ते पहुंच गई है, इतने % complete है, A part हो चुका है, automated emails, AI ਦਾ बहुत use है. So like it plays a very big role always. 100%. Yeah, because like I have seen in my business also this thing कि कभी कभी ऐसा होता है कि like all my managers, all my agents, like they are busy, but like we have few virtual assistants. They are just always messaging my clients. Someone from our team will get back to you if you have any emergency or anything. You can drop us a message, email or whatever on the very same number, or maybe on WhatsApp, maybe on or email, or maybe on this emergency helpline. So एक client का वो एक जो गुस्सा होता है वो वहीं ठंडा हो जाता है. हाँ जी. अगर लाइक एक एंग्री क्लाइंट है तो वो एक वो उसी जगह पे वो वहाँ ठंडा होके बैठ जाता है. आप बेसिकली उसको ठंडा पानी पिला देते हो अपने वर्चुअल असिस्टेंट्स के थ्रू. एग्जैक्टली कि भाई आप एटलीस्ट अगर कोई एक फेड अप क्लाइंट हो या कुछ भी हो कि जो फेड अप हुआ है या फ्रस्ट्रेट है या कुछ भी है, XYZ है, क्योंकि लाइक एज यू सेड कि रात को 12 बजे अब हम ये नहीं बता सकते कि आपकी अब, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी इंडस्ट्री, मतलब मेरे साथ क्या होता है, यूजुअली आई डू द क्लाइंट एक्विजिशन. सो अगर आप मेरे क्लाइंट से, तो आपको सबसे पहले मैं ही मिला था आपकी प्रॉपर्टी पे, राइट? मैंने आपको अपने सारी प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू करवा दिया था कि लाइक व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी डू. बट उसके बाद जब एक ऑनगोइंग प्रोसेस जो चल रहा होता है, जो एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, तो उसमें एक बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व है. एक लीजिंग एजेंट इन्वॉल्व है, मार्केटिंग टीम वाले इन्वॉल्व है, उसके अंदर क्लीनिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. तो मतलब हर के लिए एक डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट है. बट कभी कभी क्या होता है लाइक देयर इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो आपकी पेमेंट्स इशू करेगा या जो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपकी प्रॉपर्टी के लिए. बट लाइक दे ऑलवेज लाइक अगर किसी क्लीनिंग डिपार्टमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्टर ने फ़ोन कर लिया कि हमारा ऐसे ग्रास कटिंग करवानी है या कुछ करना, दे वांट टू टॉक टू प्रज्वल. कि प्रज्वल इज वो फिर वो बात ये आ जाती है कि जब आप प्रॉपर्टी ले रहे थे तब तो प्रज्वल था. तो मतलब बीइंग अ लीडर ऑफ टीम कि मेरे पास लाइक आई कैन नॉट बी अवेलेबल. बट हाँ, फॉर श्योर ये नहीं है कि मैं आपको क्लाइंट बना के भूल गया हूँ, ऐसा नहीं है. मेरी टीम आपके लिए टेक केयर कर रही है. बट अब आपकी प्रॉपर्टी में फिल्टर कब चेंज हो रहा है तो ये शायद मुझे नहीं पता होगा, बिकॉज
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रख रहा, मेरी टीम ध्यान रख रही है, मेरी कंपनी ध्यान रख रही है, प्रज्वल पर्सनली नहीं ध्यान रख सकता। इसकी एक ना मैंने अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, माइंडसेट बुक है, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन हु रोट इट। उसमें क्या बोलता है कि बिजनेस वाले सेक्शन में पर्टिकुलरली, सो इट्स अ बुक ऑन पेरेंटिंग, बिजनेस एंड माइंडसेट। ओके, तो बिजनेस वाले सेक्शन में पर्टिकुलरली ये बोलता है कि आपने जैसे एग्जैक्टली योर सिनेरियो, मतलब तुसी क्लाइंट एक्वायर कर लिया, राइट, यू आर द बिजनेस डेवलपमेंट गाय, पीपल जस्ट वांट टू टॉक टू यू, देन व्हाट डू यू टू सेव योर टाइम, आपको आपकी कंपनी के अंदर अपने जैसे क्लोन्स बनाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, यू कैन बी AI क्लोन्स, इट कुड बी रियल ह्यूमन क्लोन्स, बट मेक श्योर कि जब आप मेरी एनर्जी मैच करें। एग्जैक्टली, मेक श्योर जब आप अपने क्लोन्स बना रहे हो या हायर कर रहे हो, उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके अंदर नहीं है, ठीक है, और वो आपकी एनर्जी लेवल मैच करने चाहिए, क्योंकि जैसे मैं आई गेट वेरी एक्साइटेड इफ आई वांट टू हेल्प समबडी आउट, I dive deep into their situation, I ask questions, sometimes those questions are, जो सामने वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है कि यार तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, बट ऑल आई एम डूइंग इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन सो आई कैन ब्रेक द रूल्स एंड बेसिकली बेंड द सिचुएशन इन देयर फेवर। बिल्कुल, राइट। तो जब तक आप बुक पढ़ोगे नहीं, आपको रूल्स पता ही नहीं होगा, तो रूल तोड़ोगे कैसे? बिल्कुल, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपने जब बोला ये बात तो मेरे को एकदम से ध्यान है यार, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, 3-4 लोग आपसे एक लेवल नीचे वाले होने चाहिए जो आपके क्लोन्स हैं, बिल्कुल, एंड दे आर बेसिकली स्कैटर्ड एवरीवेयर, डीलिंग विद ऑल द बेसिकली फायर फाइटिंग ऑल डे फॉर यू। एग्जैक्टली, क्योंकि हर वक्त हर टाइम अवेलेबल होना लाइक मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अब कुछ बहुत ऐसे होते हैं कि सेगमेंट्स बट जाते हैं। अब टीम है इंटरनली, लाइक आप लगा लो कि सुबह अगर एक लीडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सुबह से लेके शाम तक कोई 9 टीमें होती हैं जो डील करनी होती हैं। बट अब लाइक अगर नो डाउट क्लाइंट इज इम्पॉर्टेंट, ओनली बिकॉज ऑफ द क्लाइंट वी गॉट दैट टीम, ठीक है, बट ये है कि क्लाइंट ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हर वक्त वो बंदा अवेलेबल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, सो वो वाली चीज़ है, बट लाइक AI इज रिप्लेसिंग इट, बट लाइक स्टिल लाइक ये प्रॉब्लम मैंने स्पेशली अपनी कम्युनिटी में देखी है, दैट दे वांट बंदे नाल गल करा दो। एग्जैक्टली, वो बंदे ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਆ ਗਿਆ bro ਹੁਣ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲੀ ਜਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ एग्जैक्टली, एंड आई हैव सीन दिस थिंग मेजरली इन दुबई, मतलब कनाडा में इतना नहीं है ये, जितना दुबई में एडवांस हो चुका है, जितना AI का यूज दुबई में है फॉर इन द बिजनेस वर्ल्ड, मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्लोनिंग, इन टर्म्स ऑफ marketing, in terms of business development, in terms of sales, everything. They have automated pretty much anything you can name, they have automated it all. तो दुबई की ऑलरेडी, मतलब वो दुबई का ऐसा है कि यार वो 50 साल आगे चल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से, तो एटलीस्ट इंडिया से मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज आई लव माई कंट्री, बट कनाडा और US से तो 100% वो 50 साल आगे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ AI एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दुबई का अलग ही सीन है। बिल्कुल बिल्कुल। बट यार आपका जैसे बिजनेस है, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस बिजनेस? लास्ट वाले सेगमेंट के लिए रखते हैं। चलो ठीक है। पहले आपसे पूछते हैं, अब आप अपने बारे में बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, किस कंट्री से शुरू हुई। बीइंग आपने इंडिया की बात करी है तो इंडिया पे ही आ जाते हैं। इंडिया से पहले यहाँ थे या इंडिया से आए हो, इमिग्रेंट हो कनाडा में या दुबई में इमिग्रेंट हो, कहाँ लाइक जर्नी क्या है आपकी? वो मेरी थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है तो बात करते हैं उस बारे में। टाइम ही टाइम। बिल्कुल। तो 2008 में, ठीक है, मैं, मेरे पापा, माय यंगर ब्रदर एंड माय मॉम, वी केम एज PR in Canada. My dad was the main applicant, तो पूरी फैमिली का हमारा PR हो गया था। तो हम जून 2008 में आए थे यहाँ पे। यहाँ रुके, पापा ने देखा थोड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, थोड़ी बहुत समझ भी आई, लैंड एक्विजिशन, वो हमेशा से कमर्शियल रियल एस्टेट एंड कपड़े का हमारा बिजनेस है इंडिया में। सो my dad is very active in the real estate space, at least he tries to be, and he likes to read up on things. तो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी चीज़ें समझ आई, ऐसा नहीं है कि नहीं आई, but we stayed here only for a month. We went back to India because just for a month. We only stayed here for a month. We went back to India,
एंड इंडिया इसलिए गए क्योंकि यार हमारी जॉइंट फैमिली है वहाँ पे. मन नहीं लगा यहाँ? मन भी नहीं लगा और प्लस बिजनेस का भी थोड़ा था हमारा, जैसे रिटेल का बिजनेस है, रिटेल क्लोथिंग. वी हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग एंड रिटेलिंग ऑफ आवर ओन ब्रांड ओके. इन इंडिया. तो वो एक बंदे के संभालने वाली बात नहीं थी. बिल्कुल. Because my taya is in the business, and my dad was also in the business at that time. Okay. So Family owned and operated. exactly, yes. We are a small business. We're not a large But corporation. still operated by family and owned by family too. Everything stays in the family. मतलब मेरे brothers जो हैं, ताए का बेटा बड़ा and मेरा younger brother, they're all working in the family business. Nice. Super nice. तो इस रीज़न से हम लोग वापस गए कि यार पापा कहते हैं यार यहाँ मन नहीं लग रहा, जॉइंट फैमिली से आए हैं और सिंगल रहने लग जाओ, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा. सो वी वेंट बैक. मैं 7वीं में था, आई थिंक 7th में था उस टाइम पे, या 7th ख़त्म करी थी, ऐसे कुछ था. 2 साल बाद मैंने पता नहीं क्या हुआ, मेरे को अंदर से क्या मेरे कीड़ा जागा, क्या हुआ आई डोंट नो. मैंने पापा बोला मेरे को कनाडा जाना है बुआ के पास. तो पापा ने बोला ठीक है चला जा. ओके. पीआर तो थी? हाँ पीआर था. तो पापा ने बोला ओके यू कैन गो, मतलब तू चला जा, फिर देखते हैं क्या होता है. मेरे को समझ नहीं आई यार. मतलब पापा ने बोला कि मैं 12 साल का लड़का, मैं कभी दिल्ली से बाहर में निकला नहीं. अच्छा. मेरे बाप बोल रहा है कि तू भाई तू चला जा कनाडा, कुछ होगी रीजनिंग बिहाइंड. मैं कहा चलो ठीक है. सो आई पैक्ड माई बैग्स ब्रो एंड दैट नाइट आई रिमेंबर, मतलब आई सॉ माई डैड क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब मैं आई वॉज एट द एयरपोर्ट, whatever I can remember. He's bidding me farewell, he's saying bye, and then he turned around. I knew he was crying. I knew he cried that night for sure. So my dad's very close. I'm very close to my dad actually. I try to be. Very good. So वहाँ से हम मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. I had never been on a plane by myself. Okay. कभी भी. और ये बात मैंने कभी भी कहीं पे भी ऑनलाइन किसी को भी नहीं बताई. मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ हमारा जो एकदम से कनेक्शन बन गया. सही. ये मैं आपको बात बता रहा हूँ. मैं कभी फ्लाइट पे भी नहीं बैठा था अकेले. अच्छा. ठीक है. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. गोवा, मुंबई, कहीं मत दिल्ली से ही बाहर नहीं निकला था. अच्छा. एक्सेप्ट कनाडा फॉर 2008. वो पेरेंट्स के साथ. वो तो पेरेंट्स के साथ था. वो एक सेफ्टी जोन होता है. एग्जैक्टली. हाँ जी. तो आई वॉज 13 years old. मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू फ्लाइट में जाएगा. जेट एयरवेज की फ्लाइट थी, ब्रसेल्स रुकती थी. ओके. ठीक है. पापा ने बोला कि तू जा रहा है फ्लाइट पे. मैं कहा पापा क्या करना होता है, मतलब व्हाट डू आई हैव टू डू, इट्स फर्स्ट टाइम. पापा ने बोला 2-4 बंदे आइडेंटिफाई कर ले फ्लाइट में, जहाँ वो जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जाता रहियो. बस से. मैंने कहा ठीक है. लकीली बाय चांस मुझे एक अंकल मिल गए टोरंटो के. ब्रैम्पटन के एक्चुअली. ही ओन्ड फ्यू क्या बैंक्वेट हॉल्स एट दैट टाइम. ओके. Very influential figure, I found out after. Okay. So he met me. He was basically sitting in the seat next to me. Okay. तो हमारी बात स्टार्ट हुई. कैसे भी कर कुरा के. उस टाइम पे फ़ोन मेरे पास था नहीं, कुछ भी होता नहीं था घर पे भी. मतलब भले जमाने थे, कुछ ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था. तो मैंने ना फ़ोन लेके, ब्लैकबेरी होता था मेरे पास, मैंने ब्लैकबेरी से ना वो फेसबुक पे चेक इन डाला, लक्ष्य मेहता हैज़ चेक्ड इन टू ब्रसेल्स एयरपोर्ट. आज भी वो मेमोरीज में आ जाता है. ठीक है. तो दैट्स हाउ आई इन्फॉर्म माई डैड कि हाँ मतलब मैं ठीक हूँ. अच्छा. एनीवेज मैं पहुँच गया यहाँ पे. सो दैट वाज इन ईयर 2010. सही. I did my grade 10, 11, 12, basically high school from here in Mississauga. Okay. I went to a Catholic school. And funny thing is कि उस टाइम पे जिस स्कूल में मैं गया कोई देसी बंदा होता ही नहीं था. मतलब बहुत गिने चुने 10, 15, 20 होंगे ज़्यादा से. ऑल टुगेदर टोटल. एक क्लास में पूरे स्कूल? पूरे स्कूल में टोटल बात कर रहा हूँ मतलब मैं. ओके. और जो होते भी थे तो दे आर लाइक प्रीटी मच born and brought up here kind of thing, right? Okay. So that was its own sort of struggle. As I said, मतलब मैं स्टार्टिंग से आई वाज अ चबी. फेस किया बहुत ज़्यादा उस टाइम पे. बहुत ज़्यादा. ठीक है. बहुत ज़्यादा. I used to be a big guy. मतलब I used to be a chubby guy from the beginning. इनके कौन सा 6 पैक एब्स निकले हुए होते हैं. Bro मतलब मैं स्टार्टिंग से ही ना दिल्ली से ही I was a big dude. So यहाँ पे आके जब you face all those things, all those things, all those comments, hate comments, bully comments, people not talking to you based on your looks. So you start feeling कि यार there's something wrong in you. Yeah. There's something wrong with you, right? And I was tired of feeling that. तो 10वीं की मिड में I was like कि यार something has to change. मतलब I made friends but it was basically like काम के. कुछ मैं I was good at math.
तो कुछ मैथ का क्वेश्चन समझना है, कुछ अकाउंटिंग का क्वेश्चन समझना है, तो लक्ष्य कैन यू हेल्प मी. सो इट वाज दोज काइंड ऑफ फ्रेंड. ओनली ट्रू फ्रेंडशिप्स आई हैव फ्रॉम माय हाई स्कूल इज वन गाय हु स्टिल विद मी टिल डेट. और मैं आज भी उसको संभाल के रखता हूँ. मतलब मेरे को मेरा फर्स्ट दोस्त वो बना था, आज भी मेरे साथ है, तो उसको मैं संभाल के रखता हूँ. बाकी समथिंग चेंज इन मिड ऑफ ग्रेड 10. मतलब मेरे को यार ये हो गया बस. लाइक आई एम नॉट एनी लेस देन anybody. And when you are a teenager and you go through all that, it impacts your mental health a lot. Like I'm talking कि मतलब you feel कि यार मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलना. बिल्कुल. Right? तो मेरे अंकल हैं, बुआ के जो हस्बैंड है, he told me कि यार ये सब बेकार बातें हैं. Just go out and be yourself and things will change. So I joined the gym. मैं कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करी. प्रज्वल, आई एम किड यू नॉट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मैंने कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करी, कोई मैंने पुशअप नहीं किया, कोई मैंने डंबल नहीं उठाया. ठीक है. आई वेंट टू द जिम एट 7 PM टिल 8:45. आई वॉज रनिंग कंटिन्यूसली ऑन द ट्रेडमिल. ओके. कंटिन्यूसली. Okay. और मैं अपने घर से मिसिसागा में मैं रहता था, बुआ रहती थी मतलब उस टाइम पे, ब्रिटानिया इन क्रेडिट व्यू पे. दैट्स वेयर आई ग्रू अप. एंड वहाँ से रिवर ग्रोव कम्युनिटी सेंटर इज अबाउट 3 kilometers वन साइड. ओके. 6 kilometers टुगेदर. मैं भाग के आता जाता था. अच्छा. तो मतलब पता नहीं अंदर से क्या हो गया था कि मैं समथिंग हैड टू चेंज. तो आई वॉज मैं वेट बताता हूँ आपको. ग्रेड 10 में जब मैं यहाँ आया, मेरा फोटो भी आपके साथ शेयर करूँगा. मैं जब ग्रेड 10 में यहाँ आया, आई वॉज 132 समथिंग, 131 ऐसे कुछ किलोज. 2011 में जब I went back for the first time. India. When I went back for the first time, I still remember the weigh scale said 77.5. क्या बात. And I don't know how it happened. मतलब मेरी डाइट थी, मैं सिर्फ बॉइल्ड वेजीज खाता था, सिर्फ दूध पीता था, कोई प्रोटीन नहीं, पनीर कुछ नहीं. वेरी बेसिक. मतलब जो मंक्स की डाइट होती है ना, बेसिकली आई वाज टेकिंग क्लीन. कोई नमक. मेरा ब्रदर इन इंडिया, एल्डर ब्रदर, ही इज इनटू फिटनेस अ लॉट. मतलब वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह लड़ता था फॉर फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग. तो उसने मेरे को बोला बस ये नमक और मीठा बंद कर दे, तेरे को अपना फ़र्क दिख जाएगा. तो आज लाइक ठीक है, करना ही नहीं. मतलब मैंने खाना ही नहीं, ना तेल, ना नमक, ना शुगर, कुछ नहीं. आई लॉस्ट बेसिकली अबाउट कितने 50 किलो के आसपास एक साल के अंदर. दैट वाज नॉट हेल्दी. बट मैं आपको एक्साइटमेंट ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट बैक टू इंडिया, तो हमारी शॉप्स हैं, लाइक क्लोथिंग शॉप, स्टोर्स जो होते हैं. ओके. तो मेरे जो बड़े पापा हैं, माय ताया, ही बेसिकली सिट्स एट द कैश, माय डैड सिट्स एट द अदर कैश जो दूसरे स्टोर की है. तो मैं चला गया वहाँ पे जहाँ पे हमारा वो स्टोर्स हैं. ओके. एंड आई वेंट इनसाइड द स्टोर. मेरे को लगा पहचान लेंगे यार. मतलब मैं तो पहले पैरी पैना करने लगा था. मेरे को लगा पहचान लेंगे. तो मेरे बड़े पापा इज़ वेरी आउटस्पोकन एंड ही इज़ अ एल्डर गाय. तो पुराने ख्यालात के उन्होंने वो बोलते हैं लेना है लो, नहीं तो दूसरे बंदे को आने दो आगे, काइंड ऑफ थिंग. राइट. क्योंकि उनको पता है यार कि कोई टाइम वेस्ट करने वाले आते हैं. तो बिल्कुल मुझे बोलते हैं पीछे से आके, भाई साहब लेना है लो, नहीं तो दूसरा बंदा वेट कर रहा है. मैं कहा यार ये तो समझ नहीं आई. मैं कहा बड़े पापा. कहते कौन बड़े पापा. मैं कहा मैं पैरी पहना गया, फिर पहचाना उन्होंने. एक्चुअली मेरी शक्ल चेंज हो गई, पूरा का पूरा हुलिया चेंज हो गया, एवरीथिंग चेंज्ड. सो लिटिल बिट ऑफ ट्रैक, बट दिस इज माई स्टोरी इन हाई स्कूल. देन आई वेंट टू वाटरलू यूनिवर्सिटी. ओके. एंड उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक. लाइक बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू चेंज्ड मी. आई वाज सो सोशल. लाइक पहले जिस लक्ष्य को कोई जानता नहीं था स्कूल में, जिससे सिर्फ लोग कैलकुलस के क्वेश्चंस पूछने आते थे, जो रिसेस के टाइम पे भी लाइब्रेरी में बैठ के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था. बेसिकली लाइक अ लोनर जो बोलते हैं यहाँ पे हाई स्कूल में. आई वाज बेसिकली द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन वाटरलू फॉर द देसी कम्युनिटी. Okay. And that all happened because of my gym routine, my outgoingness, my outspokenness, meeting people, actually showing curiosity about people, not just कि यार हाँ भाई ऊपर की बात नहीं, actually understanding कि सामने वाला बंदा कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्या करता है, मेरे से क्या चाहता है, मैं उससे क्या कर सकता हूँ, हम लोग कैसे बॉन्ड कर सकते हैं. So that thing changed a lot. मेरी मॉम यार एक बार वाटरलू आई. Okay. उनको पता नहीं था मेरा.
इंडिया से? इंडिया से माई मॉम स्टेड हियर फॉर 1 year. ओके, 2000 अच्छा आपके साथ ही थे? जब मेरी 12वीं हुई ना तो मेरे डैड ने मम्मा को भेज दिया कि यार तू उनके हिसाब से 12वीं बहुत बड़ी डील होती है, बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि यार 12वीं है लक्ष्य की, तू चली जा. अच्छा, तो माई मॉम स्टेड हियर विद अस फॉर अ ईयर. तो उस दौरान वो वाटरलू आई जब मैं यूनिवर्सिटी जा चुका था. तो शी डिडंट नो मेरा रेज कहाँ पे है क्या है, शी डिडंट नो एनीथिंग. तो वहाँ पे SLC है, स्टूडेंट लाइफ सेंटर. आई वॉज वेरी आउट गोइंग. मैंने काफ़ी सारे क्लब्स ज्वाइन किए हुए थे, काफ़ी सारी ज्वाइन की हुई थी एसोसिएशंस. तो यहाँ एक्चुअली इधर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में ये चीज़ को बहुत प्रमोट भी किया जाता है, क्लब्स, एसोसिएशन. यू हैव टू ब्रो, मतलब इफ यू वांट टू मेक कनेक्शंस, मेक डू योर नेटवर्किंग, मेक श्योर कि भाई कनेक्शंस तो सेपरेट एक सेकेंडरी थिंग हो गई. हाँ जी. प्रज्वल, अगर आप अपने आप को, यू आर नॉट पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, यू आर नॉट पुटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एंड इन बिटवीन पीपल, they won't know you first of all, and then you'll be struggling alone. मतलब behind the doors, मतलब आपके पास कोई बात करने वाला भी नहीं होगा. और कनाडा जैसी कंट्री में if you don't have friends, if you don't have somebody looking after you and your mental health, your support system, I think you're already losing. I don't think you should be here. अगर आपके पास आपका support system, आपके friends वगैरह नहीं है, this country is not for you. You won't be able to survive. Makes sense. Right? तो वो मम्मा आ गई वहाँ पे, उन्होंने पूछा यार मैं आई एम लुकिंग फॉर लक्ष्य मेहता. तो आई वाज सरप्राइज. वहाँ पे जो लोग थे वो कहता यार आंटी हम आपको छोड़ेंगे उसके रेज में. मैं कहा यार ये तो पॉपुलरनेस हो गया. तो वर्क विद RBC एज अ प्रोजेक्ट एनालिस्ट. देन आई जॉइंड कैट पेंशन प्लान, जो एक डाउनटाउन में बाय साइड पेंशन प्लान है. देन आई वर्क विद CGI, वर्क विद द बिगर ब्रांड्स. देन आई ग्रेजुएटेड ब्रो. 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी. But in the meantime, you was already with the big brands. Yes, so मेरे रेज्यूमे पे ठप्पे लग चुके थे अच्छे ब्रांड्स के. CGI is a very well known brand for tech consulting. RBC is the worldwide known banking financial institution. Exactly. और जो पेंशन प्लान था कैट पेंशन, व्हाट दे डू इज कि जो आपके कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स होते हैं या प्रोफ्स होते हैं उनकी इंश्योरेंस, उनकी पेंशंस वगैरह वो लोग हैंडल करते थे. सो इट वाज अ वेरी बिग एट दैट टाइम एज वेल. नाउ इट्स लाइक ब्लोन अप ह्यूज. मतलब इनके पास जो एसेट्स हैं, इनकी जो एसेट मैनेजमेंट टीम आई, इनकी जो फाइनेंशियल जो टीम आई, प्राइवेट एक्विटी टीम आई, दे ग्रू देयर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट टू अ next level, basically huge. I'm talking, if not hundreds of millions, then billions at least, right? So I was very happy with my university career कि हाँ चलो ये तो हो गया, right? But once you graduated, अच्छा इस दौरान I got interested in real estate. Basically that's where मेरी कहानी उत्थों स्टार्ट होती है फॉर रियल एस्टेट. लाइक वाटरलू तो ही स्टार्ट होती है एंड दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ. लाइक आई हैवंट लेफ्ट. दैट्स इट. Waterloo? KWC. I'm in Cambridge. Okay, you are in Cambridge. Yes. Okay. Yeah. Okay, nice. Yeah. तो वहीं से मेरी रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट हुई 2012 में. Okay. Yeah. Oh sorry, 2013. ठीक है. Yeah. So that was my first property. Okay, so you bought a property? So my dad bought a property. Okay. कि वो स्कूल यूनिवर्सिटी जा रहा है तो रेंट देने से बढ़िया प्रॉपर्टी ले लेते हैं. एंड उस टाइम पे इट वाज गुड प्राइसेस. एंड इजी टू बाय उस टाइम? आई थिंक इट वाज इजी यार. मतलब माय मॉम वाज वर्किंग. माय मॉम वाज द फर्स्ट मैनेजर फॉर लजीज शुगर. फर्स्ट जो लोकेशन खुली थी उनकी. ओके. In Britannia, on Britannia in Credit View. My mom was the first manager. Okay. So that's how I know. So उनकी income थी यहाँ पे. So we got her a mortgage and everything. मतलब मैं involve नहीं हुआ. Okay. I give all credits to my aunt and my dad. मेरी पुआ जड़ी हैगी है. I give all credits to them. जिद्दां मर्जी करके हाथ पैर मार के 5% 10% डाउन जो भी उन्होंने कीता, they bought a property. Okay. उसी प्रॉपर्टी तो ब्रो मेरा सारा पोर्टफोलियो उस प्रॉपर्टी ने बनाया. Everything that I have today, except a few things maybe, everything that I have today is because of that property. Nice. So I give every credit to my aunt, my dad, and that property. Yeah. मैं वो नहीं बेचूंगा कभी भी. Okay. Yeah. ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ property. बिल्कुल. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ. बिल्कुल exactly. Bro my dad,
आपको बताता हूँ 2-4 इंस्टेंसेस वहाँ के। वहाँ पे यार थोड़े बहुत ड्रग एडिक्ट्स आके रहने लग गए। अच्छा द पीपल आई वेंटेड टू जंकी पीपल आई वेंटेड टू, कोई स्पीड करता था, कोई हेरोइन करता था, इंजेक्शन दिखते थे मुझे। सो आई वाज लाइक मैं डैड पापा मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, मेरे को यूनिवर्सिटी के पास ही रहना है, लाइक आई एम नॉट गोना लिव ऑफ कैंपस। तो आप मानोगे नहीं, जब मेरी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे खाली पड़ी रही, मैं वहाँ नहीं रहा, मैं जाके रहा यूनिवर्सिटी के अंदर रेजिडेंस में। तो हाउ बिग ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लंडर कैन वन डू, यू टेल मी। मतलब आज मैं लोगों को नसीहतें देता फिरता हूँ कि यार ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो आपकी वेल्थ जनरेट हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ें जो समझ में आई हुई है ना, वो अपने आप धक्के खा के आए, वो धक्के खा के बिल्कुल। मतलब कोई बादाम खा के नहीं आई हो ऐसे। तो कोई ये भी है, कोई मेंटरशिप के कोर्स लेके या यूट्यूब से वीडियो देख के बिजनेस नहीं सीखता। एग्जैक्टली और वो चीज़ मैं कर चुका। लाइक आई एम वेरी बिग ऑन मेंटरशिप, वेरी बिग ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मतलब आई हैव पेड ऑलमोस्ट in my entire real estate career almost $200,000 for mentorship and learning and development. But जो चीज़ आप खुद सीख सकते हो on the boots on the ground, nobody will be able to teach you that. Exactly. Right? तो हाँ वो प्रॉपर्टी खाली रही भाई। उसके बाद मेरे पापा बोलते थे कि यार तू क्या कर रहा है, मतलब वहाँ जाके रह, तू वहाँ जा 2 मिनट का रास्ता है, तू वहाँ नहीं रह रहा, व्हाट्स हैपनिंग। सो आई सेड आई कैंट। उसके बाद जब समझ आई, इट वॉज ऑलरेडी आई गेस टू लेट। मतलब ग्रेजुएशन का टाइम हो गया था। समझ तब आई, लेकिन जब समझ आई ना, तब वो पॉइंट तब था जब मैंने प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू देखी। ठीक है, मैं पापा को बोलता था क्या ले लिया है, खटारा है, बेकार है, यू नो टूटी पुरानी है। और यार बेसिकली पैसा उसी में ही है। ठीक है, टूटी पुरानी को ठीक करा के, अच्छे से बना के, रेनोवेट करके, पैसा उसी में ही है। वो अब समझ आती है। लेकिन उस टाइम पे जब बंदा 17-18 साल का होता है, उसको डाल दो पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर, बोले तू यार अपनी पूरी जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, जो प्राइम टाइम है मज़े लेने का, तू ऐसी प्रॉपर्टी में निकाल, तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो जाता है। बट इन हाइंडसाइट फाइनेंशियली दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट। तो मैंने बोला इनको यार ये बेच दो, बेकार है, आपने पता नहीं कहाँ ले लिया है। दैट वॉज एट द 2 year मार्क ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पापा ने एक बात बोली थी कि प्रॉपर्टी को जितना देर रखोगे उतना ही वो तुम्हें दे के जाएगी। ठीक है, अब उस बात को घुमा दो। प्रॉपर्टी में कुछ गलती हो गई, आपने ज़्यादा महंगी खरीद ली, सस्ती खरीद ली, कुछ भी अटरम पटर कुछ भी हो गया, द लॉन्गर यू होल्ड ऑन टू रियल एस्टेट द मोर फॉरगिविंग इट गेट्स, राइट। कुछ भी गलती आपसे होगी, आपने मान लो प्राइवेट लैंडिंग में 80,000 दे दिए, 1 लाख दे दिया, आपकी प्रॉपर्टी 7 की थी, आपको 8 की पड़ गई, वो 5 साल में आपको मैटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो 10 साल में इतना मैटर नहीं करेगा। सो बेसिकली just expand your timeline and things start to get forgiving. Yeah, because like ये एक बड़ा मतलब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ ये कि लोग क्लोजिंग करने के लिए लाइक सी के लेंडर के पास चले जाते हैं, प्राइवेट लेंडर के पास चले जाते हैं, बी के पास चले जाते हैं, एंड बाद में लाइक दे आर हैविंग ईगरनेस कि साथ के साथ ही ए में या बी में या सी में मतलब वापस मतलब बड़े लेंडर के पास जाना है। वो क्या चीज़ होती है यार? वो ऐसा होता है कि आपके पास मान लो कोई सी लेंडर है, मतलब आपके पास कोई प्राइवेट, जैसे मैं हूँ, मैंने पैसे किसी को देने हैं, ठीक है, उसने क्लोजिंग करवानी है। अब क्लोजिंग करवाने के पैसे नहीं है मान लो, ठीक है, डाउन पेमेंट नहीं है, तो उसके एक तरीका तो होता है कि मैं अपने नाम पे टाइटल करा लूँ, ठीक है, और एडजेसेंट आपका और मेरा जॉइंट वेंचर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली यू ओन द प्रॉपर्टी बट टाइटल पे मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे दे दिए, राइट। दूसरी चीज़ ये होती है कि पैसे देने हैं, उनको 90 डेज़ की हिस्ट्री देखनी है बैंक्स को, राइट। ठीक है, 90 आप 120 मतलब 4 महीने लगा लो, 3 की जगह आप 4 कर लो। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं आप 5 ही लेके चलो भाई, क्योंकि उन्होंने लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट मांग लिया, फिर फंस जाओगे आप। 30 डे की लोगों ने नॉर्म बनाया हुआ है मॉर्गेज, जो ब्रैम्पटन में मॉर्गेज इंडस्ट्री जो है, जो मॉर्गेज एजेंट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं जी, वो ये बोलते हैं 90 डेज दिखा दो, कोई चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 90 डेज क्या दिखा दो? 90 डेज अगर आपने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, लेट्स से $1.5 लाख आपने मुझे दे दिया, वायर ट्रांसफर कर दिया, अब वो 90 डेज तक आपके बैंक में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी क्लोजिंग है 45 डेज में, आपने मुझे आज $1.5 लाख दिया है और बैंक अंडर राइटर ने मेरी
स्टेटमेंट मंगवाई दोबारा से रिफ्रेश्ड वाली, उसके पास आ गया कि यार ये तो $1.5 अभी 45 दिन बाद क्लोजिंग है, $1.5 इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रही है, क्या है सोर्स ऑफ फंड्स, क्या है, क्यों है, इसका रीज़न क्या है, वो पूरा चिट्ठा पर्चा सब खोल देते हैं। सही। फिर आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। वो मतलब मुझे पता है कि अंडरराइटर जो मर्जी बोल ले, आपकी क्लोजिंग नहीं होगी अनलेस इट्स अ गिफ्ट। ओके। वो गिफ्ट का भी मांगते हैं कि यार आप 90 डेज तो दिखाओ ही दिखाओ, राइट। तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ आपने किसी से पैसे लेने हैं, मान लो बी लेंडर है या सी लेंडर है या प्राइवेट लेंडर है, कोई भी है, आपका बुआ है, आपका चाचा ताया, जो मर्जी है, आप 4 से 5 महीने तक वो पैसे अपने पास रखो, होल्ड रखो अपने बैंक में। मतलब आपकी मान लो जून में अगर क्लोजिंग है तो आप जैन फेब के अंदर वो पैसे को अपने संभाल के रख लो, ताकि एटलीस्ट बैंक को पता चले कि स्टेबिलिटी तो है। एग्जैक्टली कैश, यू हैव द कैश रिजर्व्स, यू हैव द एबिलिटी टू पे ऑफ योर करंट डेट्स। आपकी कोई कलेक्शंस में नहीं है, आपकी कोई बैंक्रप्सी नहीं है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है R1 पे है, सारी रिवॉल्विंग गुड, पेमेंट टर्म्स गुड पे है, आपकी कोई ओसैप लोन का बहुत चक्कर पड़ा हुआ है यार, वो उस पे आएंगे, वो तो बहुत जरूरी, उस पे मैंने बात करी। ओसैप लोन का बहुत चक्कर पड़ा हुआ है, मतलब उसका मिसयूज, उसका बहुत इतना क्या चल रहा है ये। और वो छोटे मोटे तो चलो मैं किसी को क्या बोलूँगा, वो उसको बहुत सारे PR वाले लोग हो गए, ये आपके प्रमोशनल इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों को सबको वो ये सब प्रमोट कर रहे हैं आजकल। वो चाहे खुद मेरे को लगता है कई तो स्टडी परमिट वाले हैं यार। ये जो इन्फ्लुएंसर्स की बात आपने करी है ना, मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज ऑनेस्टली ये जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है मेरे को तो समझ नहीं आती। यहाँ पे जो है, जो ट्रेंड चल रहा है उसी पे वीडियो बना दी, कोई सर पैर है वीडियो का नहीं है, कुछ नहीं अता पता, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस वीडियो को देख के जो यूनिवर्सिटी में पहले साल में बच्चा गया हुआ है, या फिर कॉलेज में जो बच्चा पंजाब से अपनी ज़मीन गिरवी रख के आया हुआ है, या दिल्ली से अपने बाप से लोन लेके आया रखा है, उसके पापा ने लोन लिया हुआ है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फाइनेंशियल जो उसकी रेपरकशंस है, वो लोगों को परवाह नहीं है। उनको व्यूज़, लाइक्स, शेयर्स, सेव्स और अपने फॉलोअर से मतलब है, राइट। तो वो चीज़ मेरे को नहीं समझ आती है। इफ़ यू आर लेट्स से मैं अगर मॉर्गेज पे कंटेंट बना रहा हूँ आजकल, ठीक है, या फिर मैं दुबई के रियल एस्टेट पे कंटेंट बना रहा हूँ, तो आई बेसिकली गो एंड डबल चेक, जो वहाँ पे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, जो बड़े लेवल के ब्रोकर्स हैं, मैं उनसे डबल चेक कराता हूँ ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये ठीक है या नहीं है, ये बता दो मेरे को, क्योंकि कल को कोई रेगुलेशन आ गई फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और सामने वाले बंदे ने बोल दिया मेरा तो ब्रोकर ये था, ठीक है, फर्स्ट तो मैं गया ना यार, फाइनेंशियल स्क्रूटिनी में तो मैं आ जाऊंगा ना। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बेचने वाला उसने अपनी चीज़ बेच दी, जो खरीदने वाला उसने अपनी चीज़ खरीद ली, सू कर दिया मेरे को क्योंकि बीच मिडल मैन मैं था। तो आई डोंट वांट एनी सच थिंग ऑन पेपर्स, यस। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ऑफ दोज थिंग्स। बट हाँ, ये जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है ओंटारियो के अंदर स्पेसिफिकली, हाल खराब है भाई। ओसैप का क्या यार ओसैप का मैंने जो बात करी थी वो क्या है ओसैप, लोग उसको कैसे मिसयूज कर रहे हैं, और क्या ये अच्छी बात है, क्या ये बुरी बात है, और ये कितना बेनिफिशियल है, और क्या जो जेन्युइनली जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है ये उन लोगों को तक जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा, या ये कैसे कम हो गया अब। और प्राइवेट कॉलेजेस का क्या इशू है कि इसमें लोगों ने अपनी, आप जैसे मेरे जैसे ने, आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, कॉलेज रजिस्टर्ड कर दिया, बिल्कुल, वो तुषार भाई के पास और यूवी भाई के पास 50-50 हज़ार लाख डॉलर पड़ा, इन लोगों से ट्रांसफर करवा के कॉलेज ही खड़ा कर दिया, 4 बंदों ने कॉलेज बना दिया। ऐसा कुछ चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। एक ऐसे ऑफिस में हमारे 4x4 के 5x5 आप मानोगे नहीं, इतने यूनिवर्सिटी खड़ी कर, आप मानोगे नहीं, जितना आपका ऑफिस है ना इतना बड़ा, ये जो आपने पूरी प्लेट ली हुई है, हाँ जी, इसके अंदर 3 कॉलेज चलते देखे हैं मैंने, 3 कॉलेज डिफरेंट और लोग आ रहे हैं वहाँ, मतलब आते थे अब तक आते थे, अब तो नहीं आ रहे कोई, चलो ठीक है, हाल ही खराब हो गया, बट अब नहीं आ रहे। मैंने 3 कॉलेज देखे हैं मिसिसागा के अंदर, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, नहीं चलो मिसिसागा में मैं इतना बता सकता हूँ कि वो जो कॉलेजेस थे वहाँ पे आसपास टाइल्स और फ्लोरिंग की मार्केट है। अब जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ब्रो ओसैप का ये है कि जिन लोगों तक पहुँचना चाहिए ये चीज़, उन लोगों तक कम पहुँच रही है अब, बिकॉज ऑफ द स्कैम्स दैट आर हैपनिंग, ठीक है। जो मैंने सुना है, मैं तो ओसैप अच्छे वाले उसके अंदर बात कर रहा था कि वी ट्राई टू गेट पीपल आउट ऑफ the OSAP loans, out of the high interest debts, using their properties.
जो आप बात कर रहे हो वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब ओसैप आपके रैकेट पे चढ़ गया है तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी क्लोजिंग में भी तो प्रॉब्लम ही देगा। एग्जैक्टली राइट, ऐसा ही है ना। हाँ बिल्कुल। अगर आज मैं अगर ओसैप लोन ले लेता हूँ तो अगर कल को मैं कोई प्रॉपर्टी जाके लूंगा तो वो रैकेट पे तो आएगा। एग्जैक्टली होएगा, बिल्कुल होएगा। उसको छुपाने के तरीके हैं, लेकिन वो आपको एडवाइज़र ही बता सकता है। एक प्रॉपर जिसके पास क्वालिफिकेशंस हैं वो वही बता सकता है कि आपको कैसे वो चीज़ें हटानी है, एलिमिनेट करनी है। मतलब छुपाने की मैं इवेसिवनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पे ऑफ करने की बात कर रहा हूँ कि उसको उसके क्या तरीके हैं। मान लो आपका वो सब पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो उसके लिए प्रॉपर स्टोरी लिखी जाती है, प्रॉपर लेटर दिया जाता है बैंक वाले को। तो देयर एक्स नंबर ऑफ वेज यू कैन जस्टिफाई कि आपके पास ओसैप है लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो इज फाइन, जायज़ है, कोई नाजायज़ बात नहीं है इसके अंदर। मतलब यहाँ का कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरा अभी जो ओसैप लोन है वो $22,000 का आउटस्टैंडिंग है। लाइक आई एम फुली ओपन अबाउट इट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोन लिया। आई वॉज अ गाय हु वॉज नॉट वेरी फाइनेंशियली स्मार्ट यूनिवर्सिटी के टाइम पे, एक्सेप्ट दैट मूव कि मेरे घर वालों ने मेरे को प्रॉपर्टी ले दी। That was the best financial move anybody could have done for me. उसके अलावा मैं अपने आप को यूनिवर्सिटी के टाइम तक I didn't consider myself as financially smart. Okay. तो जो ओसैप के पैसे आते थे, I used to go to LCBO, I used to go to like different restaurants. मैं यहाँ चला जाता था डाउनटाउन टोरंटो स्टेक हाउस में जाके खाने वाने खा रहा हूँ, राइट। मैं बच्चा स्टूडेंट, तो I blew my money like anything, like crazy. और ये मेरे डैड आई थिंक सुनेंगे तो उनको समझ आएगी कि क्या कहाँ गया पैसा। बट आई हैव लिव्ड माई लाइफ। लाइक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ज़िंदगी नहीं जी, यहाँ पे आई लिव्ड गुड लाइफ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल। लेकिन उस टाइम पे जब आप मज़े ले रहे होते हो ना, उसका जो बटरफ्लाई या रिपल इफेक्ट होता है वो 7-8 साल बाद दिखना स्टार्ट होता है। मतलब वो 5 साल तक भी नहीं दिखेगा। हाँ, बिल्कुल। वो 7-8 साल के बाद आपके ऊपर टोल लेना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल। मैंने जब सेकंड प्रॉपर्टी लेनी थी तो उसने बोल दिया जी आपके तो 35,000 आउटस्टैंडिंग ओसैप है, इसका क्या करना है। तो मैं कहा क्या करें। तो एनीवेज वो उस टाइम पे आई सॉर्ट ऑफ मूव थिंग्स अराउंड, बेसिकली पैसे रोटेट कैसे होते हैं वो समझ आ गई थी। तो वो चीज़ें हमने करी टू बेसिकली गेट दैट प्रॉपर्टी क्लोज्ड अप। तो अब मेरा जो डेट है 22,000 है, लेकिन आई कैन पे इट ऑफ एनी टाइम। बट वो लो इंटरेस्ट डेट है, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। Like I can service the debt, I can sustain it, even if it's on my record, it's fine, because मेरा जो पैसा है, जो मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर एग्जांपल है, तो वो 3% के डेट पे ऑफ करने से मैं ऑक्यूपाई कर दूं जहाँ की मेरा पैसा 20-25-30% अर्न कर सकता है, राइट। तो देन आई डोंट वांट टू पे दैट ऑफ, आई वांट टू अर्न मोर इंटरेस्ट ऑन माई मनी सो आई कैन सर्विस द डेट एंड लिव द लाइफ स्टाइल दैट आई लिव, राइट। सो दोज आर द थिंग्स यू हैव टू कंसिडर कि जब आप फाइनेंशियली स्मार्ट हो जाते हो, आपके पास क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं या धक्के खाने के बाद एक्सपीरियंस आ जाता है, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ। ओसैप का मिसयूज़ आजकल इससे ऐसे हो रहा है कि यार बच्चे जो मैंने केस देखा है, आपने कोई और केस देखा होगा, मैंने जो केस देखा है, बच्चों ने एनरोल कराया यूनिवर्सिटी में, दिस इज़ इन यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी में दिल्ली से एनरोल करा लिया, ओके, आ दिल्ली गए से इधर, दिल्ली से यहाँ पे, ओके, ठीक है, एनरोल करा लिया। अब वो इसमें कैच ये है कि वो बंदा जो था वो पीआर था पहले से ही, अच्छा, वो है इंडिया में रहे थे, ओके, लेकिन दे वर पीआर्स, सो दे क्वालिफाइड फॉर ओसैप लोन्स, राइट, अदरवाइज यू डोंट क्वालिफाई फॉर ओसैप, राइट। तो जो स्कैम है वो ये चल रहा है कि बच्चा यहाँ आ गया थोड़े टाइम के लिए, ओसैप रिलीज हो गया, ओसैप की पैसे उसने, देयर आर 2 ऑप्शंस, either OSAP pays directly to your university, okay, or you can get it paid in your bank account, okay, right? तो 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। So like obviously like people gonna select कि मेरे अकाउंट में पैसा exactly है, और like if the government knows कि, but like these days especially government knows कि है ना कि इसका misuse हो रहा है, exactly, but यार मुझे नहीं पता गवर्नमेंट knows or doesn't know, मतलब मैंने ये चीज़ देखी है अपने आंखों से, और I was not like, आप रेडिट पे जाओगे, कोरा पे जाओगे, यू विल सी सो मेनी ऑफ दीज एग्जांपल्स पॉप अप, बट ये तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है आज से 6-8 महीने पहले। so आपने वो उन्होंने अपने अकाउंट में मंगवाया, अकाउंट में पैसे मंगवाए, 2 सेमेस्टर की फीस इकट्ठे आती है, ओके, ठीक है, तो ज़्यादा ओसैप नहीं था वो, लेकिन आई थिंक 12-15 हज़ार होता है, 12-15 हज़ार आया होगा उसको, प्लस
उसने यूनिवर्सिटी से ग्रांट्स अलग होते हैं ओके और जो आई थिंक वन इज़ ग्रांट वन इज़ एक और चीज़ होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ यार इसका, वो देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म अबाउट इट. ओके रिबेट्स नहीं, कुछ और होता है यार. चलो एनीवेज जो भी होता है वो यूनिवर्सिटी फ्री देती है बेसिकली आपको. ओके वो स्कॉलरशिप टाइप होती है. या मान लो मैं एज अ मेहता फैमिली मैंने कुछ स्कॉलरशिप स्टार्ट करी वाटरलू में कि अगर इस बच्चे का ये क्राइटेरिया मीट होता है तो यू कैन गिव देम दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप थ्रू माय फैमिली ऑफिस. ओके ठीक है. नाइस अगर आप यूजुअली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स राइट. मतलब ये either start a charity, either start a trust, either start a scholarship program or like a educational program. तो अगर आपने वो चीज़ करा दी, यूनिवर्सिटी में इनरोल करा दिए, तो आपके उसमें लिस्ट ऑफ जो बेनिफिट वो होती है ग्रांट्स एंड जो भी उसका सीन होता है वो सब लिखा आ जाता है कि मेहता फैमिली ग्रांट ओके $3,000. ये क्राइटेरिया मीट होना चाहिए. तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत स्मार्ट हैं आज की डेट में, जो भी वहाँ से इंडिया से आ रहा है तो आ रहे हैं, वो सब अप्लाई कर दिया है. ठीक है. यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है. ठीक है. 2-4 दिन गए, अप्लाई भी कर दिया, वो ग्रांट भी पे हो गया. मान लो 4,000 का ग्रांट था, 10-11,000 आपको उस हिसाब से मिल गए, 12-15,000 हो गए. मैंने अपने सामने देखा बंदा को ड्रॉप आउट हो गया, चला गया वापस. वो सब पे करने का है ही नहीं, कुछ हिसाब किताब ही नहीं है. तो क्रेडिट हिट होगा. उसने वो कहता मैंने आना ही नहीं है. अच्छा लोग ये तो वीडियोस हैं ऑनलाइन यार, लोग कह रहे हैं मैंने आना ही नहीं, वापस ही नहीं आना, कर लो जो करना है. क्रेडिट ही खराब होगा ना. तो ये हम लोग खुले में इस बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर बेसिकली एजुकेटिंग पीपल एंड एजुकेटिंग कंपनीज की क्या क्या चल रहा है यहाँ पे. लेकिन जो लोग हैं दे आर केयरलेस. मतलब वो कल को कनाडा नहीं आ सकते. अगर वो आना चाहे तो उसको रोक लेगा वो जो CBSE ऑफिसर है. हाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर आपको कलेक्शन में डाल देंगे, बट आप पे कोई लीगल लिटिगेशन में भी तो डाला जाएगा आपको कि ये बंदा. यार वो क्या होता है कि जो बैंक का, जो मान लो बैंक से आपने लाइन ऑफ क्रेडिट ले रखी है फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो लाइन ऑफ क्रेडिट का सीन ये होता है कि आपने मान लो इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं किया, आप डिले करते गए. तो एक टाइम पे आके एक सूरत आती है कि जो बैंक बोलता है कि ये तो बैड डेट अकाउंट है या तो राइट ऑफ है हमारी तरफ से, तो वो अकाउंट इसको बंद कर दो. नहीं, बंद नहीं करो. वो अकाउंट जाता है कलेक्शन एजेंसीज के पास. तो अंदर की गेम ये होती है कलेक्शन एजेंसी की. बेसिकली आपको पता होगा या नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत अंदर की गेम ये होती है कि ये लोग इनसे अकाउंट्स ले लेते हैं. मान लो किसी बाय कर लेते हैं. ठीक है. बल्क में किसी का 20,000 बैलेंस आउटस्टैंडिंग है. ठीक है. अब ये लोग उसको फोन करके धमका के हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे, आपका क्रेडिट कुछ नहीं सकते, वो क्रेडिट रुइन कर देंगे, ये कर देंगे. अच्छा मान लो कोई बंदा शरीफ होए, वो डर जाता है, वो डर जाए, वो सेटलमेंट करता है. तो $20,000 का उस पे वो है लोन आउटस्टैंडिंग. 15-16 पे उसने बोला कि मैं आपको, अगर आप अभी अपफ्रंट दे दोगे तो मैं आपको 17,000 कर दूंगा. ठीक है. बंदा खुश हो जाता है. बंदा खुश हो जाता है. 3,000 तो गए, कोई नहीं. लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपको ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल टिप है. मतलब अगर आप कलेक्शंस में हो तो फर्स्टली आप कुछ भी पैसे देने से पहले आपको उनसे लिखित में, मतलब रिटन ईमेल एंड लेटर हेड पे, कंपनी की लेटर हेड पे ये लिख के लेना चाहिए कि गेट योर लाइक दिस पर्सनस अकाउंट इज पेड एज अग्रीड और पेड एज गुड स्टैंडिंग में ला के फिर कुछ पैसे देने चाहिए. मतलब आप पैसे दे दिए आपने. ठीक है. आपने 17,000 दे दिया, उन्होंने आपके इक्विफैक्स को रिपोर्ट कर देना कि कलेक्शन पेड हो गया, खत्म. मतलब वो आपकी कलेक्शन रिपोर्ट हो गई और आपने पैसे भी दे दिए. तो इसका तरीका ये होता है, मान लो अगर आपसे कुछ गलती हो गई है फाइनेंशियली, आप कलेक्शंस तक पहुंच गए हो, तो देन वर्क विद देम. या यूजुअली ये लोग रीजनेबल लोग हैं. मतलब इनको अगर आप ढंग से बात करोगे, आप अपनी सिचुएशन समझाओगे, तो दे अंडरस्टैंड कि लाइफ हैपन्स, शिट हैपन्स, तो we need to basically accommodate requests. तो get that thing first, वो letterhead पे and email both, and then pay anything. और मैं तो ये बोलूँगा कि 17,000 उसने बोला you can negotiate further कि यार मतलब 10 पे कर लो या 5. मैंने ये, क्योंकि एक और चीज़ इसमें मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कलेक्शन, जब आपका डेटा सेल हुआ तो बैंक उसको ऑलरेडी एज अ बैड डेप्ट डिक्लेयर कर चुका है एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट्स ले चुका है उस चीज़ की. सो ऑलरेडी जो एक बैंक का वो एक बैड डेप्ट क्लियर करके या एक बेकार खर्चा
या बेकार बिजनेस को कंसिडर करके वो HST या ये जो भी टैक्सेस होते हैं वो क्लेम कर चुका होता है बैंक, राइट? आई थिंक कोई इंश्योरेंस है कनेडियन इनको आइजर वे इनको पैसे मिलते हैं, इनको मिल जाते हैं। CDISC आई थिंक कनेडियन ऐसे डेट इनको पैसे मिल जाते हैं एंड लाइक इफ कोई कलेक्शन पे करता है तो उसमें से भी कुछ परसेंटेज गोज टू कलेक्शन एंड कुछ परसेंटेज गोज टू बैंक। वो मेरे को आइडिया नहीं है। ऐसा होता है कि कुछ क्योंकि देखो ना डेटा तो वो बैंक का है ना, तो बैंक को ट्वाइस पैसा मिलता है एट द एंड ऑफ द डे, ट्वाइस ही पैसा मिल गया, दो गुना ज्यादा मिल, क्योंकि उन्होंने अपनी इंश्योरेंस से कुछ बहुत क्लेम किया होगा, कुछ बहुत आप दे दोगे, तो एट द एंड बैंक फायदे में ही है। बट चलो लाइक वी आर नॉट हियर टू प्रमोट ऑल दीज थिंग्स, बट ये है कि यू हैव टू सेटल और नेगोशिएट ऑलवेज। आई वुड से एनीथिंग, कोई भी आप पे कोई भी ऑफर फेंके कभी भी लाइफ में, मतलब मैंने ये चीज़ सीखी है आफ्टर मेंटरशिप, आफ्टर लाइक आई लुक अप टू माई डैड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो मैंने कभी भी कोई चीज़ सीखी है कि यार कोई आपको कुछ चीज़ बोल रहा है, नेवर टेक इट फेस वैल्यू, हमेशा आप अपने फेवर में नेगोशिएट करो। मतलब जब तक आप बोलोगे नहीं मुंह से या मांगोगे नहीं, तब तक आप चीज़ मिलेगी नहीं आपको, मिल ही नहीं सकती। भगवान भी नहीं आके दे सकता है, वो बोलेगा मेरे को पता ही नहीं तेरे को चाहिए क्या, तो मैं दूं क्या तेरे को, राइट? सो दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड। बट एनीवेज मूविंग ऑन, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टची है मेरे लिए, क्योंकि I see all these things happening online in our community, and it works me up a lot. कि कुछ bad elements of our community पूरी community का नाम ruin कर रहे हैं। कैसे मिसयूज हो रहा है ये थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करोगे? बताया तो, वो 15,000 लेके भाग गया। वो जो यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं वो कैसे मिसयूज कर रहे हैं? इसका मेरे को आइडिया नहीं है यार, मैंने यहाँ पे रहते हुए बंदे को मिसयूज करते हुए नहीं देखा है। बट लाइक ऐसे ये देखो ना, अब जो इंडिया में जो ऑलरेडी PR, पहली बात इंडिया में PR बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, उसके बाद वो सिर्फ OSAP को लेने के लिए $10-15,000 रिकूप करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। नहीं, रिकूप करने के लिए नहीं, एक्स्ट्रा लेने के लिए आते हैं भाई लोग। ओके, 10-15,000 आ रहा है, बस चलो वापस। बिल्कुल आते हैं। मतलब मैंने यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 10-15,000 मे बी आपके लिए इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, राइट? मेरे लिए मे नॉट बी अ बिग अमाउंट, मेरे बाकी आपकी टीम के लिए दे आर अर्निंग जो भी सैलरीज हैं माइट नॉट बी अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन जो बंदा नीड में है और उसको कोई गलत बंदा ये वाली राह दिखाता है, तो उसके लिए तो यार 1500-2000 की टिकट लेके 15,000 मिल रहा है ना, समझ रहे हो आप? तो जो नीड है जिसकी पूरी होती है, जैसे जिसका घर पूरा होता है वो बंदा करने की कोशिश करता है वैसे। और इसमें हमारी सोसाइटी इफेक्ट कैसे हो रही है और हमारी कम्युनिटी के कितने झंडे गड़े जा रहे हैं? यार, so I work with a brokerage that is predominantly Canadians, and people of different ethnicities. Indians अभी तक मैं नहीं मिला हूँ, मतलब मेरे को हफ्ता ही हुआ है वहाँ पे। Indians अभी तक मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन I used to work before this. I used to work in Brampton, and Brampton में आप आज ओकविल चले जाओ, आज आप बर्लिंगटन चले जाओ, और किसी को बोल दो कि आपको कोई बंदा है जिससे आपको ब्रैम्पटन से काम निकलवाना है, तो जो रेपुटेशन ब्रैम्पटन की बनी हुई है इस टाइम पे बिकॉज ऑफ आवर कम्युनिटी इज, आई एम सॉरी टू से, इट्स नॉट ग्रेट। मतलब इट्स गुड फॉर अस, इट्स बेसिकली इट फील्स लाइक होम, राइट? बिकॉज हमारी कम्युनिटी, हमारा सपोर्ट, हमारी इमोशंस, हमारी वाइब सब वही है। लेकिन जो गोरा है, जो कनेडियन है, उसको अगर आप बोल दो कि मुझे ब्रैम्पटन से कुछ काम लेना है और तुझे वहाँ जाके करना पड़ेगा, या वहाँ का बंदा आ रहा है, तो दे ऑलरेडी हैव दिस प्री कंसीव्ड नोशन कि यार ये तो मेरा काट के जाएगा, ये तो मतलब मेरा छेल उतार के जाएगा। अच्छा, बिल्कुल है, सही। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब कार वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है? कार्स हाईजैकिंग हो रही हैं, पकड़े जाते हैं कौन? अपने इंश्योरेंस स्कैम्स होते हैं। रिसेंटली हुए अभी मैंने 20-22 लड़के थे। मैंने अपनी स्पोर्ट्स कार इंडिया जाने से पहले बेची थी। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को ब्रैम्पटन से कितने ऑफर्स है, भाई साहब उठवा लो, पैसे मिल जाए। मैं पागल है क्या भाई, राइट? सो आई टुक अ $20,000 हिट ऑन सेलिंग दैट स्पोर्ट्स कार। बट मेरे को ये था कि अगर मैंने गलत तरीका ले लिया जस्ट बिकॉज ये 20,000 पूरे करने के लिए, मैं हमेशा अपने शोल्डर के पीछे देखता रहूँगा।
मैं कभी खुद से खुश होकर नहीं जी पाऊंगा यार सिर्फ 20,000 मतलब 12-15 लाख रुपए के पीछे तुमने ये चीज़ करी है, राइट? सो दैट्स अ बिग थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन आवर कम्युनिटी. और रेंटल उठा लो, रियल एस्टेट पे आ जाते हैं. रेंटल उठा लो, रेंटल के नाम बुरे हैं ब्रैम्पटन के. बिल्कुल. एक बेसमेंट के अंदर 15-15 लड़के मैंने देखे हैं यार. मतलब मैं प्रॉपर्टी देने गया था, वो बंदे ने मेरे को बोला मैं वहाँ हूँ नहीं, लॉक बॉक्स लगा हुआ है, रेंटल टेनेंट्स रह रहे हैं, जाके देखो. मैं अंदर घुसा, वो बेसमेंट की हालत रहने लायक ही नहीं थी, राइट? 15 बच्चे रह रहे हैं, मतलब एक कमरे के अंदर 5 उसने बिछा रखे हैं वो गद्दे, राइट? 3 रूम है, किचन है नहीं, बाथरूम एक, ऊपर से ड्राई वॉल नहीं है, टूटा हुआ है, पंखा नहीं है. तो यू कैन इमेजिन फॉर अ पर्सन हु इज़ born and brought up in Canada or living in his country, या फिर who's a little bit more sophisticated. मतलब हमारी एथनिसिटी का ही अगर इंडियन ही है, who's a little bit more sophisticated. मान लो कोई टोरंटो का बैंकर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उसको अगर उससे हम जाके बात करें कि यार ये ब्रैम्पटन, तो सबके दिमाग में एक प्री कंसीव नोशन ऑलरेडी आ जाता है विच इज़ नॉट गुड. मतलब वो आपको एलिमिनेट करना है और वो हमारे ऊपर ही है वो कैसे एलिमिनेट करना है. वो कैसे कर सकते हैं, हम बोलते रहते हैं. कनाडा का जो इमेज है वो अभी इंडिया के अंदर तो अच्छी नहीं है. एक्चुअली मैं भी अपनी टीम से भी थोड़ी दिन पहले ही बात कर रहा था. अब एक्चुअली लोग एजुकेट हो चुके हैं. या अब आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे. पहले सिर्फ और सिर्फ एक वो अच्छी गाड़ी के साथ पिक्चर वगैरह ही दिखती थी. अब आजकल लोग जेन्युइनली, एक्चुअली पता है क्या बात है, आजकल वो लोग भी आने लग गए हैं यहाँ. ये हर एक ऐसी भी मिस इंटरप्रिटेशन है स्टूडेंट्स को लेके कि शायद हर कोई बच्चा तंग आता है यहाँ, कि तंग परिवार से होता है, कि उसने पैसे भेजने हैं पीछे, ये वो. ऐसा नहीं होता. मैंने रिसेंटली एक रियल एस्टेट एजेंट की मैंने अभी एक रील सुन रहा था. इवन दो उस चैनल पे मैं पॉडकास्ट भी देखे आया हूँ, ठीक है. तो उधर वो रियल एस्टेट एजेंट वाले हैं, वो एक लड़की पे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि ये ऊबर से खाना मंगाती है, ऊबर से वो करती है, क्या बोलते हैं उसको, ऊबर से ही आती जाती है. तो भाई वो उसकी अपनी चॉइस है. बिल्कुल. और वो कह रहे हैं कि उसको जॉब नहीं मिली अभी तक. वो कह रहे हैं कि अप्लाई कर दिया. अरे भाई तुम्हारा टाइम कुछ और था, तब जाके रिज्यूमे देने पड़ते थे. आजकल इंडीड पे सब कुछ हो जाता है. ढूंढने वालों को लिंक्डइन पे एज अ फ्रीलांसर बहुत लोग काम करते हैं, एज अ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. मे बी शायद उसको उसकी जॉब नहीं मिल रही होगी, बट लाइक अगर उसके सिर्फ ऊबर पे खाना मंगाने से या ऊबर पे वो करके, लाइक नो डाउट मे बी वो पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकता है, मे बी वो कनाडा के लिए शायद राइट फिट नहीं हो सकता, बट लाइक आई डोंट थिंक सो कि आप उस पर जजमेंट दे सकते हो. बिल्कुल. आई थिंक मे बी शायद वो उसको उसके घर वालों ने बोला हो कि तू बेटा बैठ आराम से पढ़ाई कर, दैट्स इट. या मे बी मेरे घर वालों ने ये बोला हुआ था मेरे को. कई घर वाले ऐसे बोल के भेजते हैं कि भाई आप अपना देख लेना, बस बाकी हमारे को कुछ कर बोलने की जरूरत. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब आप जजमेंट, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब बोझों का मारा ही नहीं होता. ऐसा भी नहीं होता कि कई जेन्युइनली यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, कई जेन्युइनली पढ़ रहे हैं. उनके घर वालों ने बोला भाई तुमने जो करना करो, लाइक अपना लिमिट्स में, इसमें उसमें रह के करो. और उन बच्चों की मैंने कभी प्रॉब्लम भी नहीं देखी. प्रॉब्लम भी उनके साथ ही है जो ये ऐसे से हम्बल बैकग्राउंड से. रीज़न बिहाइंड मैंने एक चीज़ देखी है. देखो मैं पिंड से बिलोंग करता हूँ. मैं चंडीगढ़ के अंदर एक छोटा सा पिंड है बड़ैल, मैं उससे बिलोंग करता हूँ. मैं खुद पिंड का बच्चा हूँ, ठीक है. बट विद चंडीगढ़, इवन दो यहाँ हमारी रूम में 2 लोग हैं जो चंडीगढ़ से, तुषार भी चंडीगढ़ से, रोहन भी चंडीगढ़ से है. ओके. हम लोग मतलब एक अगर मैं यहाँ अब एक चीज़ देखूँ ना कि कोई छोटे कपड़ों में अगर कोई किसी ने छोटे कपड़े डाले हुए हैं तो वो मेरे लिए कोई न्यू नहीं है. मैं अपने चंडीगढ़ में इससे ज़्यादा ग्लैमर देख exactly. मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ, एक जेन जी लैंग्वेज में अगर बोलूँ, मैं उससे ज़्यादा ग्लैमर देख के आया हूँ. मैं क्लबिंग सारी में करके आया हूँ. नाइट आउट्स मैंने तब कर लिए थे जब मैं 10वीं 11वीं में था. और मतलब शीशा बार ये वो उस टाइम में मैं ये करके आया हूँ, एक्सप्लोजर लेके आया हूँ. ऐसा नहीं था कि मेरे घर वालों ने मेरे हुक्के की पाइप मेरे मुंह में पकड़ाई हुई कि भाई ले हुक्का पिया कर तू, बहुत अच्छी बात है ये, ऐसा नहीं था. बिल्कुल. बट
एक मतलब मेरे घर वालों ने मेरे को बाहर घूमने का या उस चीज़ का वो दिया था। अब जिस बंदे का एक्सप्लोजर ही नहीं है, वही बात है, अब जो पिंड से बाहर ही नहीं निकला, उसके लिए यहाँ जब उसने आके किसी को शॉर्ट्स में देख लिया तो वो एक अलग ही वो है। मैंने यहाँ 2-4 मतलब हैं हमारे, कभी कभी कोई नॉन वगैरह आते हैं, वो हूटर्स जाके लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और अब मैं आपको एक बताऊं, मतलब सोचने वाली बात है कि वहाँ क्या स्पेशल है। मैं आज तक नहीं गया। मैं खुद नहीं गया, मेरे को 3 साल हो चुके हैं। मैंने बस वो एक इमेज बनी हुई है, बस वो एक वो वाली बात है, मतलब कि एक्सप्लोजर। आई थिंक एक्सपोजर की बात प्रज्वल आप सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से यहाँ आके भी एक्सपोजर जिसको लेना होता है ना, वो लेता है, वो ले लेता है, वो ले लेता है, वो ले but लेता है। जिसको, अब वही बात है ना, माइंडसेट, हाँ एग्जैक्टली, जो आके कानों के बीच में चीज़ है ना, वो ठीक नहीं है अगर, तो आप दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ यार, मतलब आप कहीं नहीं रह सकते। आपका हमेशा जजमेंट होगी, आप ना, आपको लोग ठीक मिलेंगे, बिल्कुल, और आप हमेशा रोते ही रहोगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। अब लोग अगर जैसे आप कह रहे थे कि आपके पास आपकी शॉप पे लोग आके आपको कह रहे हैं कि कनाडा में कुछ नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। ये मेरी इस रूम में ये एक यंग एंटरप्रेन्योर बैठा है जो ये कैमरा के पीछे है। Cheers, brother. He is running one of his own marketing company in Niagara Falls. He is doing one of the real estate photo shoot. ठीक है, मैं एक यंग टैलेंट हूँ, ये दोनों एक यंग टैलेंट हैं। दोनों वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो कोई कॉलेज का स्टूडेंट थोड़ी है रोहन, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम नायगरा कॉलेज, मार्केटिंग में अच्छी जॉब कर रहे हैं सारे, मतलब लाइक बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं। वो जॉब नहीं करता, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी से अपने आप की इमिग्रेशन सपोर्ट कर रहा है। ऐसे भी तो स्मार्ट मूव वाले लोग बिल्कुल, भी तो हैं। बिल्कुल। उसके लिए तो मेरे को नहीं लगता कि अगर वो कह रहा है कि आपके लिए तंग है भाई, बताओ, कमेंट करो, आप तंग हो कनाडा में? नो डाउट, हाँ थोड़े हेयर एंड देयर हैं, फैमिली को मिस करते हैं, हर कोई करते हैं, बट यंग एंटरप्रेन्योर भी है जिसके लिए काम नहीं है। अब वो देखो, एक्सक्यूज का आप हर किसी बच्चे को आप ये मत बोलो कि मतलब आप, बहुत सारे लेजी भी हैं जिन्होंने जेन्युइनली ट्राई किया ही नहीं, जिनके एम्बिशन बहुत बड़े हैं बट वो ट्राई नहीं करते। ठीक है, वो एक अलग सिनेरियो है, बट लाइक कई एडवांटेज टेकर बोल देते हैं उसको, वो भी है। अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला और उसको अवेल करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। बिल्कुल। और उन लोगों के बारे में यूजुअली जो मीडिया चैनल्स वगैरह हैं वो उन लोगों को कवर नहीं करती। मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को हाइप चाहिए, मीडिया को नेगेटिविटी चाहिए, मीडिया को स्प्रेड चाहिए, जो चीज़ वाइल्ड फायर की तरह चलेगी। बिल्कुल। अब यहाँ बैठे हुए इंडिया तक बात कैसे पहुँचानी है कि यार कनाडा खराब है, तो वो बैड इम्पैक्ट ही होगा। देखो, हालांकि मैं मानता हूँ कि कनाडा की जो हालत है वो कोई मतलब अच्छी हालत नहीं है, अभी नहीं है। हाँ। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कनाडा इज अ डिसेंट कंट्री। आई वुड से रिकूप हो जाएगा, वापस रिकूप, मेरे हिसाब से टाइम लगेगा बट हो जाएगा। वही कह रहा हूँ ना, वापस रिकूप हो जाएगा, आज नहीं होगा, 2 साल बाद। हर कंट्री में कुछ ना कुछ डायनेमिक्स, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और ये भी हुए भी हम लोगों की वजह से ही है। एग्जैक्टली, मैं तो बोलता ही हूँ, हम खराब करने वाले भी हमें, खराब करने वाले भी हमें पहले, और एडवांटेज जो टेकर थे वो भी हम ही थे। हाँ, बहुत सारे बिलियनियर्स बैठे हुए हैं जीटीए में जो जेन्युइनली मिलेनियर्स। अच्छा, आपको एक और बात बताऊँ, फनी बात बताता हूँ। जो लोग यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी वेल्थ बना ली है, बिल्कुल। अब आई डील विद हाई नेटवर्थ पीपल, बिकॉज मेरे पास जो केसेस होते हैं या फिर जो नेटवर्क्स में मेरे मेंटर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, दोज आर पीपल ऑफ हाई स्टैचर, राइट? लाइक वो दे उठते बैठते वो हाई नेटवर्थ ग्रुप में है, तो मेरे को उनका आपस में पता है। मोस्टली जो लोग हैं इंडिया या पाकिस्तान के हैं मोस्टली, ठीक है। जो लोगों ने एडवांटेज ले ली, बिजनेस बना लिया, कैपिटलाइज कर लिया उस टाइम को, बिल्कुल, वही लोग आज जो मेरे जैसे या आप लोगों जैसे जो लोग हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आके यहाँ कुछ धमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जज करते हैं। अपनी कम्युनिटी वाला ही अपनी कम्युनिटी वाले को मारता है। यस। तो ये चीज़ मैंने देखी है इंडियन कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। यस, सपोर्टिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसी चीज़ की वजह से, जैसे आपने बात बोली ना कि हाँ रिकूप हो जाएगा कनाडा, बिल्कुल होएगा, हर कंट्री का टाइम आता है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो लोग अपने प्राइम ईयर्स में हैं, फॉर एग्जांपल फॉर वेल्थ बिल्डिंग, फॉर कंपाउंडिंग, फॉर आई गेस बिल्डिंग समथिंग जनरेशनल, उनके लिए ये जो ईयर्स हैं, दे आर वेरी, देयर प्राइम ईयर्स, दे आर वेरी एसेंशियल, वेरी वैल्यूएबल। एंड ये एक बार टाइम निकल गया, ये वापस नहीं आना। कनाडा तो वापस बाउंस बैक हो जाएगा, आपका टाइम बाउंस बैक नहीं होना। तो इस वजह से
जो लोग हैं जिनसे मैं आजकल कॉन्वर्सेशंस कर रहा हूँ फॉर द दुबई साइड, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए भी इंटरेस्टेड हैं कि यार वी नीड टू गेट आउट ऑफ कैनेडा एटलीस्ट फॉर लेट्स से एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, 8-10 ईयर्स, वहाँ जाके अपनी चीज़ें बना के, वेल्थ बना के, वी कैन थिंक अबाउट कमिंग बैक बिकॉज वी आर ऑलरेडी सिटीजन्स इन कैनेडा, विल गेट द गोल्डन वीज़ा जो 10 साल का होता है, मुझे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ जाके, पैसे हैं, पापा के पास पैसे हैं या हमारे पास पैसे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, सेविंग्स हुई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी सी श्रिंक अप हो गई है, वो थोड़ी सी ड्राई अप हो गई है। हालांकि मैं मानता हूँ कि यहाँ की रियल एस्टेट की जो अपॉर्चुनिटी अभी इस टाइम पे है, वो आने वाले 3 साल बाद ऐसे लगेगा कि अब भाई ये हमने क्यों छोड़ दी, राइट? 3 साल के बाद ये होगा, आपके पॉडकास्ट पे ही लोग आके बैठे होंगे, बोलेंगे यार 3 साल पहले असी लिखता सी असी तो मौजां लुट रहे हैं, ये बात होगी। लेकिन जो लोगों के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें बना चुके हैं, अब वो डाइवर्सिफाई कैसे करेगा? मतलब उसको ग्रोथ चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आप हंग्री हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपको कोई वो एक किक नहीं मिल रही, अब कहाँ जाओगे? जहाँ पे किक मिलेगी वहीं जाओगे ना। ऑब्वियसली तो दुबई में काम में किक आ रही होगी कि जहाँ मुझे नंबर्स दिख रहे हो, एग्जैक्टली, मुझे मार्केट दिख रही है, एग्जैक्टली। जो नंबर्स ड्रिवन पर्सन है या फिर जो किक ड्रिवन लोग हैं, जो मतलब मैं जिनको मानता हूँ जो किक ड्रिवन लोग हैं, उन लोगों के लिए दुबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टार्क ऑप्शन जो आज की डेट में खुला हुआ है, और शायद वो कल बंद हो जाए। मतलब आज से 10-15 साल बाद शायद दुबई बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब ख़त्म इन द सेंस कि जो ऑप्शंस इतना पीक पे चला जाएगा कि आज हम शायद ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, एग्जैक्टली, ऊपर नीचे करके, लाइक यार आप पीक की बात तो ठीक कह रहे हो। हाँ। वो पीक पे शायद 2070 तक ना जाए, क्योंकि जो उनके प्लान्स हैं, जो उनकी एजेंडाज हैं, जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट चलती है, जिस तरीके से उनकी पूरी इकॉनमी चलती है, वो पीक पे शायद कभी नहीं जाए, बिकॉज दे आर वेरी इनोवेटिव, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर रन लाइक अ कॉरपोरेशन बट दे आर मैनेज लाइक अ स्टार्टअप, समझ रहे हो? तो इट्स कंसिडर दुबई एज अ बिग कॉरपोरेशन, बट जो मैनेज होती है ना वो एजाइल तरीके से होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एजाइल वर्ड बहुत ज़्यादा वो होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी चीज़ बना दी, फिर डिलीवर करी और फिर फीडबैक लिया। ये लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ नहीं करी, हाँ जी फीडबैक, कुछ चीज़ नहीं करी, हाँ जी फीडबैक, अच्छा नहीं पसंद आया, ओके, कुछ चीज़ नहीं करी, फीडबैक। ऐसे एजाइल तरीके से जब काम होता है ना स्टार्टअप्स के अंदर, तो ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ओके, ठीक है, तो दे आर मैनेज लाइक अ स्टार्टअप, अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड एंड वेरी एफिशिएंट स्टार्टअप। तो मुझे लगता नहीं कि पीक वहाँ पे कभी आएगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, शायद वो बंद हो जाए। जो गोल्डन वीज़ा वो दे रहे हैं अभी, मैं रेजिडेंसीज वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो बंद हो सकती है, और शायद वो आज नहीं होएगी, शायद वो 10 साल बाद नहीं होगी, शायद वो 15 साल बाद चेंज हो जाए, क्योंकि उन्होंने पहले टैक्सेस नहीं होते थे, अब आई थिंक इन्होंने निकाल दिया है 9%, अब 9% टैक्स देना पड़ता है बिजनेसेस को, 9% बिजनेस टैक्स है वहाँ पे, पहले नहीं होता था। आज की डेट में भी जो फ्री जोन कंपनीज हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ मिटिगेटिंग द टैक्सेस, बट इट्स अ वे टू डू इट, बट शायद वो कल ना हो, या फॉर श्योर। तो कैनेडियंस वहाँ भी वो हमारे लोग और बहुत पहुँच गए, एग्जैक्टली पहुंच गए हैं यार, आप मानोगे नहीं, वहाँ भी लूप होल्स आ जाएंगे, तो वहाँ की भी स्ट्रिक्टनेस जैसे ऐसे कनाडा की होगी वैसे वहाँ की भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आई डाउट दैट they are very particular about strictnesses and they're very particular about their rules, everything, but एक बात जो आपने बोली है, के लिए पक्का तो कनाडा भी था आज से पहले, ये बात तो है। रूल्स पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे चलता होता था कनाडा किसी टाइम पे, आज बंद कर दिए हैं, परेशान हो गए हैं लोग, जॉब करने के लिए लोग नहीं है, बेसमेंट रेंट आउट नहीं हो रही हैं, ठीक है। मैंने तो काफ़ी वीडियोस तो वो भी देखी हैं, पेट्रो के प्रेस्टो क्या बोलते हैं उसको, बस पास, वो जो प्रेस्टो के कार्ड्स भी दे रहे हैं आजकल बेसमेंट रेंट आउट करवाने के लिए, देखिए मैंने कुछ बहुत मीम्स वगैरह नहीं आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और लैंडलॉर्ड क्या करेगा यार, लैंडलॉर्ड को तो दुबई पे आते हैं अभी, लेकिन लैंडलॉर्ड को क्या चाहिए, लैंडलॉर्ड को चाहिए मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट ना हो, ठीक है। अब 2021-22 के अंदर जिसने प्रॉपर्टी ली, उस टाइम पे स्टूडेंट्स का जो बूम था, मतलब 2018 तक इट वाजंट दिस क्रेजी, 19 के बाद मतलब 18 आया एकदम, ऐसे लोग आए हैं कि मतलब पता नहीं कनाडा में क्या बिक रहा है, क्या बेच रहे हैं, क्या फ्री मिल रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ। बट जो लैंडलॉर्ड है उसको तो यार अपना रेंट चाहिए ना, उसने फिर क्या किया, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, 2023 में 7-8 बार बढ़ा दिया, मतलब
मेरा 2021 में जो मैंने प्रॉपर्टी ली थी उसका रेट पता कितना था? 1.2%, फ्री मनी बेसिकली। ठीक है, वही रेट जो वेरिएबल था वो मैंने फिक्स करा लेना चाहिए था, मैंने कराया नहीं, क्योंकि मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, मेरे को रीफाइनेंसेस कराने थे, मेरे को आगे ग्रोथ करना था। वो 1.2% हो गया 6.8, 5.5% बढ़ गया है। जब आपका रेट पेमेंट बढ़ जाए, रेट बढ़ जाए, आपकी प्रॉपर्टी अगर खाली होने, फिर उसके बाद जो लोग आपकी प्रॉपर्टी में रहते हैं उनका आना ही बंद कर दो आप कंट्री में। जिस चीज़ की वजह से आपकी इकोनॉमी चल रही है आप उस चीज़ को ही बंद कर दो। तो पहले तो आपने ऐसे भर भर के ले आए, रूल्स आपके पास नहीं है, पॉलिसीज आपके पास नहीं है, उसके बाद आपके पास उनको उस जो बैड पॉलिसीज हैं उनको हटाने की भी पॉलिसीज नहीं है, लेकिन आप से एक फ्लड गेट बंद कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा ना। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ ख़राब है। वही अब प्रॉब्लम हुई है। अब आप लगा लो सारे बिजनेसेस में भी अब चीप लेबर नहीं है, क्योंकि एट द एंड चीप लेबर तो हम ही हैं, और तो कोई है नहीं। सो वो भी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरे को किसी बंदे ने बोली, ही इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेरी वेल नोन रियल्टर एंड इन्वेस्टर इन कनाडा एंड द यूएस। उन्होंने मुझे बोला था, वो ही इज़ नॉट इंडियन, उन्होंने मुझे बोला था कि I love Indians, my best friends are Indian, my top investors are Indians, but जो रियल एस्टेट की मार्केट को ख़राब करने वाले लोग हैं ना, those are also Indians। कहता हमें 2.5% मिलता था, राइट, कमीशंस में। रियल्टर की कमीशन 2.5% होती थी। बिल्कुल। आज की डेट में किक बैक्स ये वो, हम आधे % पे काम कर लेंगे जी, 2500 में काम कर लेंगे, 1% दे दो, आधा % दे दो, ये स्टार्ट करने वाले इंडियंस ही हैं, या मतलब इंडियंस देसी हैं, राइट। और जो गोरा है आज की डेट में वो परेशान है इस चीज़ से, भाई उसका तो 2.5% से सीधा, जो गोरा भी है वो भी आज बोलेगा यार ये बंदा तो आधे % पे मेरी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तू 2.5% किस बात के मांग रहा है यार। तो वो चीज़ बहुत, क्योंकि गोरे के स्टैंडर्ड्स एंड गोरे के जो टाइम एंड गोरे के जो एफर्ट्स हैं वो अलाउ नहीं करते। एग्जैक्टली। क्योंकि उसका जो टाइम है वो अलाउ नहीं करता ना, कि मैं 2% में काम कर दूँ, क्योंकि जो उसने वैल्यू ब्रिंग अप करनी है, उसने एक अलग अलग डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना है, ढमकाना है। यार नेटवर्क की बात होती है। देखो मैं नहीं मानता कि रियल्टर या मॉर्गेज ब्रोकर या फिर एयरबीएनबी इट्स अ रॉकेट साइंस, मैं नहीं मानता इस बात को। अगर आप करना चाहो ये वाले बिजनेसेस, आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी रिसोर्सफुल एंड यू जस्ट हैव टू नो कि आपके नेटवर्क्स में कैसे, डिफरेंट नेटवर्क्स में आपको कैसे टैप इन करना है। अगर आपको वो चीज़ आ गई तो आप अच्छे रियल्टर भी बन सकते हो, अच्छे ब्रोकर भी बन सकते हो, और अच्छे एयरबीएनबी वाले भी बन सकते हो। कोई अच्छा कैशबैक, किकबैक्स और ये जो भी ये परसेंटेज 2.5 से 0.5 या 1-2 पे लाना, इसका ये क्या सिनेरियो है? यार ये सिनेरियो ये है कि लोग जो रियल्टर्स होते हैं लिस्टिंग लेने के इसलिए किकबैक्स देते हैं। किकबैक्स लाइक इन फॉर्म ऑफ लाइक कैश, हार्ड कैश भी दे देते हैं, वो पकड़े जाते हैं। अच्छा, पेनल्टी है उसके ऊपर। ओके, फ्रॉम रिको आई थिंक उसके ऊपर पेनल्टी है। आई एम नॉट अ रियल्टर, आई कैंट कमेंट ऑन दैट, बट जितना मुझे पता है कि उसके ऊपर पेनल्टी है। ओके, सो लेट्स से लाइक इफ आई एम अ रियल्टर एंड मे बी यू आर अ रियल्टर, अगर हम इन किसी की भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो लाइक 2.5% इज द कमीशन। यार अनलेस आप और मैं एग्री करते हैं कि मैं आपको आधा % दूंगा, और बायर BRA पे, बायर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट पे हम लिखते हैं कि प्रज्वल को आधा % मिलेगा फॉर द सेल प्राइस, तो आधा % ठीक है, तो कोई किक बैक नहीं हुआ उसके अंदर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार तू 2.5% लिख दे भाई, और फिर मेरे को तो पैसे चाहिए साइड पे, तूने करना क्या है, तूने तो लिस्ट ही करनी है। कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, बोलते हैं भाई रियल्टर को, अपने रियल्टर को। और फनी बात ये है कि वो जो रियल्टर होता है, दोज आर नॉट वैल्यू रियल्टर्स। वो रियल्टर्स अपने आप को वैल्यू नहीं करते, ठीक है, जो किकबैक दे देते हैं वो आधे %। सो दोज आर लाइक अ पार्ट टाइम रियल्टर्स, पार्ट टाइम कह सकते हो उनको, या फिर वो बोल फ्रीलांसर है, या फ्रीलांसर कह सकते हो, या फिर उनके जो चाचे ताए के बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं। ओके, तो जो अगर बंदा है, अगर वो बोलता है कि यार मेरी बुआ के पास लाइसेंस है, ठीक है, आपने करना क्या है, प्रॉपर्टी मेरी है, स्टेज मैंने करनी है, पेंट मैंने कराना है, ठीक है, आपको 2.5% किस बात कर दूं, पैसे दो वापस। राइट, तो ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, ओके। और वो शर्मो शर्मी जो इंडियन कम्युनिटी है वो देते हैं, फिर वापस देते हैं भाई। क्यों? और मेनली ये होता है न्यू रियल्टर्स के साथ। जो एस्टैब्लिश रियल्टर होगा उसको अपनी वैल्यू पता है,
ठीक है, वो धक्के खा खा के उसको पता लग गई होती है कि मैं क्या टेबल पे लेके आता हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, मेरे नेटवर्क में कौन कौन से लोग हैं, मेरे डेटाबेस में कितने लोग हैं, मेरा डेटाबेस एक्टिव 25-30 हज़ार बंदों का है, उसके अंदर से 3,000 मेरे पास प्रॉस्पेक्ट्स हैं और 200-250 लोगों के साथ मैं काम ऐसा कर रहा हूँ जो मेरी पूरी टीम जिनको खरीदना या बेचना है। तो उसको तो अपनी वैल्यू पता है, वो बोलेगा यार मेरे को ये लिस्टिंग नहीं चाहिए, मैं आधे % के लिए काम नहीं करूँगा, मैं अपनी वैल्यू मुझे पता है, मैं पूरे 2.5% लूँगा। कई कई तो बोलते हैं 3% लूँगा, भाई मैं ज़्यादा लूँगा, मुझे वैल्यू पता है अपनी। अच्छा, हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, ओवर कमीशन आस्किंग भी है बिल्कुल है कि भाई मैं 10% लूंगा बट प्रॉपर्टी 15 दिन में बेचूंगा या ऐसा हाँ, कुछ? ऐसा भी ऐसा हो जाता है, मैंने देखे केसेस। बट वो BRA पे या ये वाले जो केसेस आप बोल रहे हो ना, ये प्राइवेट, ऐसा हो सकता है बट? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके, प्राइवेट इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में बहुत होता है। ओके, प्राइवेट इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में ऐसा होता है कि प्रज्वल आप मेरे पास आए, वो लक्ष्य तू 5 लाख की प्रॉपर्टी बेच दे यार, ऊपर जितने की बिकी बाकी सब तेरा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप्स में होता है, आज भी होता है, और इट्स वेरी लीगल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, ठीक है, मैंने 6.5 की बेची तो 1.5 लाख मेरा हो गया। असाइनमेंट फी बोल लो या मार्केटिंग फी बोल लो या कंसल्टिंग, कुछ भी बोल लो, मतलब उस फीस को कैसे घुमाना है, दैट इज योर, कोई सी फी बोलो, वो सब लीगल है। ओके, ठीक है, आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, ठीक है, मैं आपका मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, मेरे को आपको क्लाइंट लब के लाना है, राइट। $1.5 लाख मेरी फी है। ओके, या फिर आपने बोला कि मुझे 5 लाख चाहिए, ठीक है, ऊपर जो बना द डेल्टा, दैट्स लक्ष्य फी। डेल्टा मतलब डेल्टा इन द सेंस कि 5 लाख में और 6.5 लाख में जो फर्क आया वो डेल्टा हुआ, वो डेल्टा मेरा हो गया। ओके, ठीक है, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स या ये मैथमेटिकल है थोड़ा सा, मतलब मेरी डिग्री के हिसाब से, बट वेरी नॉर्मल इन द फाइनेंस वर्ल्ड। तो जो डेल्टा होता है, पीपल प्ले ऑन द डेल्टा ब्रो। पीपल, जैसे आप स्प्रेड, जो आपका स्प्रेड होता है बेसिकली एयरबीएनबी आर्बिट्राज के अंदर जो आपका स्प्रेड होता है, दैट्स डेल्टा, सेम थिंग। ओके, राइट, ओके, नाइस, या ठीक है। एंड दुबई का, अब दुबई के साथ कनेक्शन कैसे, लाइक फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, कनाडा टू इंडिया, दुबई कहाँ से आया?